गुड इवनिंग ऑल. गुड इवनिंग. स्टार्टेड शुरू हो गया लग रहा है. दिस इज द साइन ऑफ अ गुजराती कुनाला. Anyways, so welcome everybody to 30th year celebration અમારી કંપનીનું જે છે આજે એની માટે અમે લોકો આજે આ પેનલ ડિસ્કશન ફોર્મેટનું આયોજન કર્યું છે, જેમાં વિલ બી ડિસ્કસિંગ વિથ ઓલ ધીઝ ડિગ્નેટરીઝ અબાઉટ સ્ટોક માર્કેટ ને માર્કેટ ઉપર આપણે ચર્ચા કરીશું, અને જેથી તમને બી ગાઈડન્સ આવે કે કેવી રીતે આપણા ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં શું કરવું જોઈએ એની પર બધું ડિસ્કશન્સ કરીશું. વેલકમ ટુ ઓલ ધ પેનલિસ્ટ. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર કમિંગ ડાઉન ફોર અવર thing. I'll keep it in Hindi and Gujarati. You guys can continue in Gujarati, or these two will continue in Hindi. So, as everybody said, हम लोग गुजरात में है. सबसे बड़ा गुजरात में आई थिंक हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन मार्केट में गुजराती का रहता है. तो सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन हर गुजराती का एक ही आएगा, मार्केट क्या लगता है सर? मोस्ट डिफिकल्ट एंड मोस्ट इजी क्वेश्चन. First of all, I would really say we are at the juncture where corporate balance sheet is in peak of health. We have never seen such a strong corporate balance sheet in the last 20 years or even more. So, the market is inherently very, very strong actually, right? Second part, I would really say that in the earnings momentum is still very solid. Okay, and the leg which was missing was the rural consumption. I think the green shoot of recovery we are seeing. So, market is, in my view, is slightly overvalued as compared to the long term to the range of 5 to 7%. So, some moderation can happen, but we are seeing, GDP growth rate has a very long-term growth prospects. So buy any correction for very long-term growth, and I really see there is a decadal opportunity for wealth creation, because India's demographic and lower interest cost will help us to achieve our aim for wealth creation journey for the next decade. માર્કેટ તો સારું લાગે છે. ઇનફેક્ટ મને એવું લાગે છે કે જેટલું લોકો કહે છે કે ભાઈ બહુ ચાલી ગયું, બહુ અતિ થઈ ગયું, બહુ થઈ ગયું, જેટલું લોકો કહે છે એટલું નથી બદલું. અને માર્કેટમાં તમે ક્યારે બી જુઓ ને તો માર્કેટનો કોઈક ભાગ, એટલે તમે ગોતવા નીકળો તો માર્કેટના કોઈક ભાગમાં બબલ હશે જ, અને ગોતવા નીકળો તો માર્કેટનો કોઈક ભાગ સસ્તો મળશે. એટલે હવે જે ચીજ બહુ ચાલી ગઈ અને જે ચીજ મોંઘી થઈ ગઈ એમાંથી નીકળો, અને જે ચીજ રિલેટિવલી એટ્રેક્ટિવ લાગે છે એમાં તમે જાઓ. એટલે તમે જો છેલ્લા 3 થી 6 મહિનામાં માર્કેટમાં ઓલરેડી એક જાતનું રોટેશન દેખાય છે આપણને. છેલ્લા મહિના 2 મહિનામાં તમે જો આઈટી, ફાર્માસ્યુટિકલ, કેમિકલ તો 3-6 મહિનાથી ચાલે છે. પછી તમે જો વચ્ચે કન્ઝ્યુમર કંપનીઝ, એની પહેલાં તમે હવે પાછલા વર્ષે તમે જુઓ તો બધું ઓઇલ, મેટલ, કમોડિટી, પીએસયુ, મેટલ એવું બધું ચાલતું. હવે તમે જુઓ તો બીજું નહીં ચાલે. એટલે માર્કેટમાં સતત એવું થતું હોય છે કે ભાઈ કંઈક ચીજ મોંઘી થઈ જાય એટલે પછી આપણે એમાંથી નીકળીને જોવું પડે કે ભાઈ શું હવે એટ્રેક્ટિવ લાગે છે. એટલે લાંબા ગાળામાં માર્કેટથી જોડાઈ રહ્યો, અને જો તમારા પોર્ટફોલિયોમાં તમે વિચારતા હો એના કરતાં વધુ રિટર્ન બની ગયા હોય તો જે મોંઘું થઈ ગયું એ નીકળીને બીજું કંઈ લ્યો, રાઈટ. એટલે માર્કેટ તો સારું જ લાગે છે. અને પહેલાં બી જેમ મેં કીધું કે જેટલું લોકો કહે છે એટલું ચાલુ નથી. અને મેં સવારે બી તમને કીધું કે ટીવી જો મ્યુટ પર જોતા હોય તો મ્યુટ પર જ રાખો, બહુ સાંભળવાની જરૂર નથી. આપણને સાંભળો. Sandeep, your views. So, first of all, thanks a lot for having us. And broadly, equity markets ને સારું કરવા માટે મારા હિસાબે 3 E are very important. The first E is economy, and which Gopalji also said, economy is very well placed today. In last 20 years also, as a country, we have grown in a very rapid way. In next 10 years also, we are very well placed from that angle. So, આવનારા 10 વર્ષ માટે economy activities are looking very strong. सबसे पहले तो जेपी सिक्योरिटीज को बहुत बहुत बधाई 30 इयर्स कंप्लीट करने के लिए. एज पर वन एस्टिमेट जितने भी अभी एग्जिस्टिंग एक्टिव फंड मैनेजर्स और इंटरमीडिएट्स हैं उसमें लेस देन 1% है जिनकी लाइफ मोर देन 25 इयर्स है.
JK Securities is one of them. So आप उस 1% के ब्रैकेट में हो 25 years ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्या हम लोग जिस बिजनेस में है ना ये बिजनेस इज मोर अबाउट ट्रस्ट देन अबाउट नॉलेज देन अबाउट रिलेशनशिप देन अबाउट प्रोडक्ट ट्रस्ट इज ऑलवेज द एंट्री गेट और आप इतने साल तक यदि आप सर्वाइव करते हो और लगातार ग्रो कर रहे हो और जो सबसे प्यारी बात है मैं JK सिक्योरिटीज को खास करके देखता हूँ जो क्लाइंट के प्रति आपका जो कमिटमेंट है जो विश्वास है आप लोग का दैट इज डेफिनेटली वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है तो आपको सबको बहुत पूरी टीम को बहुत बधाई और सेकंड आपका जो क्वेश्चन है मार्केट क्या लगता है ये शायद क्वेश्चन उतना ही पुराना है जितना पुराना स्टॉक मार्केट का लाइफ रहा होगा और शायद आप भी 30 साल पार किए होंगे तो आपको शायद हर दिन ये क्वेश्चन तो हमेशा रहा है सदाबहार क्वेश्चन है मार्केट क्या लगता है किंतु एक अच्छा एंगेजमेंट का भी टॉपिक है यदि बोलते हैं ना कि भाई 4 यार मिल जाए और साथ में दारू हो और मार्केट क्या लगता का टॉपिक हो तो टाइम भी अच्छा पास होगा रेस्टोरेंट मालिक का भी चलेगा खूब अच्छा किंतु सही मायने में देखा जाए इस टॉपिक का इज नो सिग्निफिकेंस ये जस्ट एक जुमला है मस्ती की चीज़ है टाइम पार है क्योंकि इसका अल्टीमेट बेनिफिट सब लोग मार्केट क्या लगता है में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं किंतु हम यदि डेटा देखेंगे ना लास्ट 20 ईयर्स में जितना परफॉर्मेंस मार्केट ने किया है उसके लगभग परफॉर्मेंस फंड मैनेजर ने लगभग उतना ही किया है किंतु क्लाइंट का जो रिटर्न है वो 19% का लास्ट 20 ईयर्स में यदि इंडेक्स का रिटर्न है तो इन्वेस्टर का रिटर्न इज 13.8% CAGR के साथ तो 5.3% का अंडर परफॉर्मेंस है इन्वेस्टर्स का जबकि वो शायद मार्केट से और फंड मैनेजर से ज़्यादा दिमाग लगाते रहते हैं मार्केट क्या लगता है तो इसीलिए ये शायद इससे पैसा कैसे हम लोग कमा पाए दैट इज मोर इम्पोर्टेंट शायद उसमें एडवाइजर्स का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि ये जो गैप है मार्केट में 5.3% कम की जगह पर हम लोग एक्स्ट्रा रिटर्न कैसे कमा पाए दैट इज मोर इम्पोर्टेंट जहाँ तक मार्केट की बात है आई थिंक जो अभी बात चल रही है मार्केट बहुत तेज हो गया सब कुछ हो गया इसका एक कारण सिर्फ यही है क्या मार्केट नया हाई किनारा लगाता है और एक हम लोग जो 23-24 के बैंड में हायर बैंड में ट्रेड कर रहे हैं ना तो लग रहा है कि मार्केट लगातार ऊपर बढ़ रहा है बहुत लोग मिस कर गए अपॉर्चुनिटी तो अब क्या करना चाहिए तो अपॉर्चुनिटी 2021 से मिस कर रहे हैं लोग मार्केट बहुत बढ़ गया तो वो कहीं ना कहीं ऐसा बोल करके मन की भड़ास निकालते हैं मार्केट बहुत बढ़ गया ये शायद बबल से दूर तक बबल के पास में नहीं है तो यहाँ से हाँ ऑफकोर्स इंडिया जिस पोजीशन में आज के समय में है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में जियो पॉलिटिकली मैक्रो इकोनॉमी को लोग देखें ओवरऑल जो लिक्विडिटी का सिनेरियो है जो स्टेबिलिटी है इन्फ्लेशन में करेंसी ब्यूटीफुल पे मानिए तो इन्फ्लेशन वगैरह जितनी चीज़ है ना ये शायद इंडिया होते कुछ तो मोदी जी का कुछ गवर्नमेंट का अच्छा कर्म भी था और कुछ अल्लाह भी मेहरबान था ये इतनी अच्छी से अलाइंड है सारे फोर्सेस क्या टेलमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है इस गवर्नमेंट में इस बार कोalition गवर्नमेंट आने के बाद बजट जिस हिसाब से आया इस बार बजट में मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल पे बहुत फोकस था संदीप जी आपका क्या व्यू है इस सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो बोला जा रहा है कि वो चौथे पहिए की तरह इकोनॉमी को आगे लेके जा रहा है तो क्या वो सेक्टर कितना चला हुआ या और कितना स्टीप बाकी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में So manufacturing, again, obviously budget was very favorable for manufacturing sector, but otherwise also a lot of things are playing out for manufacturing sector since last 2 years. जैसे आपको याद होगा मेक इन इंडिया एक्चुअली 2014 में आया फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स टू डू वेल जो 2-3 चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती है वो बहुत लेट आई जैसे सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर केम इन फॉर्म ऑफ GST in 2017, lower tax rate in form of corporate tax cut came in 2019, PLI kind of initiative came much later. So a lot of things which are required for manufacturing sector to do well came in last 2 years. And second thing, in 2014 we as a country were trying to get manufacturing pie. पिछले कुछ सालों में क्या चेंज हुआ है स्पेसिफिकली आफ्टर 2018-2019 में जब यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट हुआ and COVID which happened in 2020, a lot of large corporates and developed countries are also now willing to diversify their supply chain. So that's where actually a lot of things are playing out for manufacturing sector, and I think manufacturing sector can do well from a longer term perspective also. Having said that, दो चीजें हैं, एक होता है business cycle और एक होता है market cycle. A lot of time business cycle can last for long
बट मार्केट साइकिल काफ़ी बार जल्दी प्ले आउट हो जाता है. दैट्स द रीज़न ideally you should have a very flexible approach. So in a way you should not say that manufacturing as a investment opportunity can last for 5 years, 10 years. It can last, but you have to be very flexible that way कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि ओवर वैल्यूएशन हो गया है वहाँ से you can actually switch out and find more ideas कि जहाँ पे आपको comfort है. But otherwise lot of things are playing out for manufacturing at this point. आशीष जी, आपके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग बढ़ता जा रहा है और काफ़ी अभी तो ये बारिश के सीजन के बाद काफ़ी क्वेश्चन भी उठ रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आपको क्या लग रहा है कि हाउ गवर्नमेंट के पास कितना पैसा जो डेफिसिट कम हो रहा है उस हिसाब से उनका स्पेंडिंग बढ़ रहा है, तो वो सेक्टर का आपका भी क्या लग रहा है? ये क्या है एक्चुअली कोविड के बाद जब आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल आप समझो कि गड्ढे में है, राइट? तो जब आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल गड्ढे में जाती है तो आप और हम जो है हम लोगों का तो हिम्मत होगा नहीं पैसा लगाने का या इन्वेस्टमेंट करने का, राइट? मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस में नए प्रोजेक्ट्स में उसकी बात कर रहा हूँ. सो जनरली क्या होता है जब आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल खराब हो जाती है तो उसको गड्ढे में से निकालने के लिए एक्टिविटी चालू करने के लिए गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड, राइट? ये गवर्नमेंट के पहले जितनी भी गवर्नमेंट थी उनके ऊपर क्या आरोप था कि भाई ये लोग अपना सरकारी मशीनरी चलाने में खर्चा करते हैं, अपना गवर्नमेंट स्टाफ का खर्चा, सब्सिडी का खर्चा, लोगों को चीजें मुफ्त में देने का खर्चा, ये सब चीजों का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर का ठिकाना नहीं है. ये गवर्नमेंट उल्टा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जोर है, राइट? और पोर्ट्स, रोड्स, रेलवेज, काफी सारी चीजों के ऊपर खर्चा किया, राइट? अब पॉइंट क्या है कि जैसे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी है वैसा हम लोगों ने 2006-7-8 में भी इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी देखा, करेक्ट? तभी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में बहुत पैसा आया है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है. दूसरा चीज, पिछले बार जब तेजी हुआ ना तभी ऐसा सीखने को मिला कि B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस. तीसरा सीखने को मिला B2G वेयर कस्टमर इज गवर्नमेंट. जनरली ऐसा मानते हैं कि भाई इफ योर कस्टमर इज गवर्नमेंट इट्स नॉट अ ग्रेट बिजनेस एक्चुअली, नॉट अ वेरी रिलायबल, नॉट अ वेरी ग्रेट सिचुएशन, करेक्ट? तो अभी बहुत गर्म हो गया, बहुत तेजी हो गया, ऑर्डर बुक पे सब चल गया. ऐसा हमने 15 साल पहले भी देखा. डजंट एंड वेरी वेल. अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ अ बिजनेस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो. कैश फ्लो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज्यादा बनना चाहिए. वैल्यू ऑफ अ बिजनेस इज नॉट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर EPS, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पैट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर ऑर्डर बुक. वो सब अभी जो चल रहा है वो ऑर्डर बुक पे ही मार्केट चल रहा है. हाँ, मतलब एक बार ऐसा देखा कि कंपनी का दाम बढ़ गया, भाई इसने उसको ऑर्डर दिया, फिर उसको प्रेस रिलीज देना पड़ेगा, नहीं हमको ऐसा कोई ऑर्डर नहीं मिला. ऐसा भी हो रहा है, करेक्ट? सो आई थिंक देयर इज ओवर एक्साइटमेंट. गोपाल जी, आपका व्यू इमर्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल और ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपका क्या व्यू लग रहा है? इस गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल सेक्टर में और EV में बहुत पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो EV का चेंज आ रहा है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्पेशली आपको क्या लग रहा है EV और ऑटोमोबाइल स्पेस? देखिए क्या है कि रिन्यूएबल्स पे फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखिए EU में भी जो है 2026 से आपका कार्बन टैक्स लगेगा. इफ यू आर एक्सपोर्टिंग टू EU यू हैव टू बी कार्बन न्यूट्रल, राइट? तो रिन्यूएबल्स में सबसे बड़ी अभी अपॉर्चुनिटी है जो 5 लाख मेगावाट हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? तो इसमें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो T&D सेक्टर में है. पहले जब प्रोजेक्ट्स अपन लेते थे तो सबसे पहले आप लैंड देखते थे, अभी शॉर्टेज है ट्रांसमिशन लाइन की. तो T&D सेक्टर जो है सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जो इन्वेस्टर को आज के डेट पे, और ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है. 5-10 ईयर्स की अपॉर्चुनिटी है, इसको डेफिनेटली कैप्चर करना चाहिए. दूसरी बात ये है कि ये आप समझिए कि EV लगाना जो है उसके लिए आपको सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो काफ़ी लंबा समय लगेगा. तो पहले जब EV स्टार्ट हुआ तो लोगों को ये लग रहा था कि जो है आइस जो है वो फिनिश हो जाएगा, पर अब ये श्योरिटी हो रही है कि आइस एंड EV बोथ विल कोएग्जिस्ट, राइट? तो इसलिए
अपने को बैलेंस अप्रोच लेना है और मुझे लगता है कि जो बैलेंस अप्रोच से चलेगा वो बेटर रहेगा। दूसरी बात, ईवी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो रही है कि चाइनीज टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत सुपर फास्ट हो गई है एंड दे आर इवन बेटर देन यूएस एंड दे आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ डिफ्लेशनरी प्रेशर इन द सेक्टर। Even if we are successful in battery technology, we are not sure how competitive we would be in terms of China. So इसलिए मैं बोलूँगा कि as an investor, where we are investing, we should have a balanced view between ICE and EV. Both will coexist. और success in this business is all about battery technology. अभी तक अपन असेंबली कर रहे हैं, पर फ्यूचर में वो लीडर बनेगा जिसकी बैटरी टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल रहेगी। आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर ओवरऑल में जिस हिसाब से ईवी के अनाउंसमेंट्स की वजह से आई थिंक रैली जो 1-1.5 साल 2 साल से दिखी है, आई थिंक लॉट ऑफ ऑटोमोबाइल स्टॉक्स एंड इवन ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स का मूवमेंट डबल ट्रिपल हो चुका है, लाइक इवन 2-व्हीलर स्पेस में आप देखें तो जिस हिसाब से। सो आर दिस वैल्यूएशंस जस्टिफाइड? जो रूरल थीम पिकअप हो रही है जिस वजह से इसकी बातें होती है, तो क्या ये वैल्यूएशंस ऑटोमोबाइल में जस्टिफाइड है? देखिए, सबसे पहली बात आप समझिए कि स्टॉक मार्केट इज द स्लेव ऑफ 2 थिंग्स। वन इज अंडर ओनरशिप एंड सेकेंड इज अर्निंग अपग्रेड। तो जब 2017-18 में जब सबसे पहले ईवी आया तो सबको ये लगा कि ईवी का पेनिट्रेशन सबसे इजीली 2-व्हीलर में होगा। तो पीपल हैव रिटर्न ऑफ द 2-व्हीलर सेक्टर एंड एनीथिंग रिलेटेड विथ आइस इन ऑटो एंड दे वर रिटर्न ऑफ। यदि आप देखेंगे कि ये सब स्टॉक 40-50-60% ड्रॉप हो गए और सब फंड मैनेजर ने इस पोर्टफोलियो से ये सेक्टर्स को इग्नोर कर दिया। जबकि 2-व्हीलर इंडस्ट्री में जो आई सेक्टर है वो सबसे ज्यादा फ्री कैश फ्लो जनरेट करता है, राइट। आप यदि बजाज ऑटो देखेंगे, पूरे प्लांट डेप्रिशिएटेड है, उसमें 400 करोड़ का खाली उनको जो है टोटल डेप्रिसिएशन है, मेंटेनेंस कॉस्ट लेस देन 150 करोड़ है। तो वो टोटल फ्री कैश फ्लो जनरेशन है। जैसे सुमैया जी ने कहा क्लियरली कि मार्केट इज स्लेव ऑफ फ्री कैश फ्लो एंड आरओई। तो 2-व्हीलर में क्या है कि अपनी टेक्नोलॉजी स्पेशली आइस में वेरी प्रूवन है, उसमें फ्री कैश फ्लो एंड आरओई बहुत स्ट्रॉन्ग जनरेट होता है और मार्केट ने उसको अंडर ओन कर दिया क्योंकि ईवी आएगा। आप लोगों को समझ में आ गया कि ईवी एंड आइस दोनों एग्जिस्ट करेंगे। तो और जैसे मेटल प्राइसेस वगैरह सब नीचे हैं, राइट, तो आप देख रहे हैं कि ईवी की इस आइस कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते जा रही है, राइट। तो और फ्री कैश फ्लो बहुत हाई है और ये अंडर ओनरशिप थी, राइट, क्योंकि पूरे इंडस्ट्री का पोर्टफोलियो आप उठाएंगे ना, सबने ये 2-व्हीलर को राइट ऑफ कर दिया था, इसलिए सबसे ज्यादा रिटर्न सबको सरप्राइज किया है वो 2-व्हीलर ऑटो स्टॉक्स। तो ये मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ एक्सेसेस जब अंडर ओन सेक्टर चलता है तो फॉलो बाइंग आती है। आज के डेट पे साहब हम लोग जो है, मैं 95,000 करोड़ का फंड संभालता हूँ। आप बड़े फंड्स को पोजीशन शिफ्ट करने के लिए, और जैसे मैंने सुबह भी कहा कि 99% आज के डेट में शेयर मार्केट में F&O पे काम होता है, कैश मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं है। यदि आपको जो है 10,000 करोड़ का शेयर लेना है, बिल्कुल में पसीना छूट जाएगा। 10,000 तो छोड़िए, आपको 1,000 करोड़ का शेयर नहीं आएगा। इसीलिए जो है जब भी ये सेक्टोरल रोटेशन होगा ना, मैसिव प्राइस परफॉर्मेंस आएगा, जो एज ए कॉमन आदमी और जो छोटा फंड संभालता है ना, वो समझ ही नहीं पाएगा। जैसे अभी आपने नियर टर्म देखा, मैं एक्सटेंड करता हूँ आईटी में, फरवरी में सबको लगा कि यूएस में 10 ईयर जिसे के बाद अब 5% की हार्ड लैंडिंग हो जाएगी, सबने आईटी सन ऑफ कर दिया। और जैसे बॉन्ड यील्ड्स रैली करने स्टार्ट की, वहां पर डेटा मॉडरेशन पे आए, कंपनियों ने मिड लेवल पे हायरिंग स्टार्ट की, यू सी आईटी इंडेक्स इटसेल्फ हैज गिवन अस 40% रिटर्न, राइट, क्योंकि ये अंडर ओनरशिप हो गई थी। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि बाजार में जो भी होता है हर कुछ फेयर नहीं होता है, क्योंकि ये हमेशा या तो डाउनसाइड पे में अंडर वैल्यूएशन होगा या अपसाइड में ओवर वैल्यूएशन होगा। तो पर मार्केट इज फ्री ऑफ ओनली 2 थिंग्स। हमेशा एक गांठ बांध के रख लीजिए, अंडर ओनरशिप एंड अर्निंग अपग्रेड, बस। अभी भी रेलवेज और पीएसयूज के स्टॉक्स के पीछे रिटेल में आई थिंक अभी भी बहुत उत्साह है। क्या आपको लगता है ये सेक्टर ओवर वैल्यू है या स्टीम अभी भी बाकी है? देखिए, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बोला कि ये गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए पहले क्या होता था, पीएसयूज के ऊपर लोगों का नजर इसी में रहता था कि कभी इसका डिसइन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन अभी आप देखिए तो ये गवर्नमेंट इज यूजिंग पीएसयू एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी।
दे आर यूजिंग PSU टू ड्राइव इन्वेस्टमेंट. PSU का जो मैनेजमेंट है उसका भी एक्साइटमेंट लेवल, उसका भी जो परफॉर्मेंस, कम्युनिकेशन, बहुत सारा चीज दिस गवर्नमेंट हैज एक्चुअली चेंज. दे आर ट्राइंग टू रन दी PSUs एज बेस्ट एज दे कैन रन कंपेयर टू पास्ट. तो चेंज तो काफी हुआ है, करेक्ट. दूसरा चीज क्या है कि जब भी कोई चीज एक लेबल या थीम बन जाता है, देन यू हैव टू बी केयरफुल, करेक्ट. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको. थोड़े दिन पहले मैं एक मीटिंग में गया तो एक साहब ने मेरे को पूछा कि SME, आप लोग SME का फंड क्यों नहीं लाते हो, और SME हम लोग को. मैं बोला भाई आपने मेरे को ये सवाल पूछा, वही मेरे लिए सबसे बड़ा अंदेशा है. પૂછવું પડે એટલે ખબર પડે કે ભાઈ હવે આપણે શું કરવાનું.